Hi guys, welcome to the next set in this daily LRDI practice series. I hope you are doing well. So first pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set first. This says 5 types of chocolates, that is C1, C2, C3, C4, C5 were distributed to children of 4 classes, namely playgroup, nursery, junior KG and senior KG. So we have 4 different classes and उसमें 5 varieties of chocolates are distributed in each of these classes. ऑल 5 टाइप्स ऑफ चॉकलेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द 4 क्लासेस. तो हर क्लास में वो पांचों टाइप डिस्ट्रीब्यूट करा है. दैट इज गिवन. ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू आपके यहाँ पे 0 है. द प्री स्कूल सुपरवाइजर आस्क्ड अ टीचर टू ड्रॉ अ डोनट चार्ट about the chocolates distribution, but the teacher does not get all the numbers from the respective classes, right? So incomplete information की बात कर रहा है. Now for example the nursery class, for the nursery class she gets the exact number of only one type of chocolate, that is 24 chocolates of C5. However she draws the chart with the numbers she gets from all the classes. Okay, यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, कैसे इस चार्ट को रीड करना है. The chart drawn by the teacher for chocolate distribution in the playgroup, nursery, junior KG and senior KG is given below. The innermost circle is the chart. In the chart represents playgroup. Innermost circle मतलब ये अंदर वाला. This is the value for playgroup. Then second innermost circle represents nursery. तो अंदर से second वाला ये जो brown shape में आपका brown color में है, right? जैसे ये पूरा आपका क्या है, nursery है. Then थर्ड वाला या सेकेंड आउटर मोस्ट बोल लो या थर्ड इनर मोस्ट बोल लो, दिस इज फॉर जूनियर केजी एंड ऑटोमेटिकली बाहर वाला क्या बन जाता है आपका सीनियर केजी, राइट. सो इसी ने यहाँ पे एग्जांपल दिया था. तो जैसे नर्सरी कौन सा हुआ आपका, सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाले आपके सर्कल में नोटिस करो आपको एक ही डेटा दिया है, तो वही वो बात कर रहा था. द एग्जैक्ट डेटा ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ चॉकलेट इज 24 ऑफ C5. तो कलर कोडिंग ब्राउन में कौन सा है, C5. 24 ऑफ C5 आर देयर. एक ही वैल्यू आपको बताए. So for let's say nursery, we don't know the number for C1, C2, C3 and C4 type of chocolates, right? Now the supervisor asks the teacher to collect information from other staff members and make a table of chocolates distribution in the preschool. The teacher gathers following information from other staff members. तो कुछ और भी डेटा आपका कलेक्ट हुआ है and these will become the required conditions for us, and on the basis of this we have to solve all the 4 problems. और सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स ब्रिंग दिस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज अ डोनट फॉर्मेट, इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर अस, दैट इज अ टेबल. तो टेबल में वैल्यूज डाल देते हैं, कैलकुलेट क्योंकि करना पड़ेगा एंड ये कंडीशंस अप्लाई करने में आपको टेबल में इजी पड़ेगा. तो सबसे पहले वैल्यूज यहाँ पे फिगर आउट कर लेते हैं. सो कलर कोडिंग का बस आप ध्यान रखना, टेबल्स में वैल्यूज फिगर आउट करते हुए. अंदर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्ले ग्रुप. प्ले ग्रुप में डार्क ग्रीन से स्टार्ट है, 29 C1, राइट. तो दिस इज 29. देन green is C2, so 32. Then this blue, dark blue is 30 C4, so ये दिया हुआ है. C3 is missing in this, and then 30 के बाद red, so it has to be 20. Then nursery is the second वाले में आपको याद होगा C5 का ही सिर्फ डेटा गिवन है, that is 24. Other values are not given. Then third junior KG, फिर आपका यहाँ पे 3 values given है. Let's start with this dark green one, so this is 28 for C1. So this is 28. Then light green is C2, 36. And then light blue, this is C3, so this is 35. So C4 and C5 are missing for junior KG. Then senior KG में क्या given है आपको, light blue and dark blue. So light blue is representing C3. It has to be 40. So this is 40. And also उसके next वाला that is dark blue given है, that is 41. So this is all the data that is given in this particular donut chart. Now this donut chart is over, right? इसका representation जो भी था वो इतने ही तक था, टेबल पे आ गया. Now we have these conditions. अब इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन रीड करना, and let's get the maximum crux out of this. Maybe we'll need certain variables to represent some values, so उसको हम यहाँ पे टेबल में प्लग इन करना स्टार्ट करेंगे. Let's do this. So this is the total number of chocolates of C1, C3 and C5 types. So C1, C3 and C5 types का total कितना है, 95. This is columns addition. 146 for C3, so this is given 146, and for C5 is 101, so this is 101. Next, the number of C2 type chocolates distributed in nursery. So C2 nursery, so C2 nursery is this value. दिस इज 17 मोर दैन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीनियर केजी. तो ये C2 टाइप की बात कर रहा है. C2 टाइप में आपका
सीनियर केजी और नर्सरी के बीच में रिलेशन क्या है, नर्सरी वाला 17 मोर देन दिस वैल्यू है सीनियर केजी से। तो इफ आई से दिस इज लेट्स से ए, दिस हैज गॉट टू बी ए प्लस 17। सो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ अगर ये कॉलम का एडिशन पता होता तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से ए निकाल सकते थे, बट वी डोंट नो दैट राइट नाउ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ C4 इन जूनियर केजी। तो C4 इन जूनियर केजी दिस वैल्यू was 2 more than that distributed in nursery। तो C4 के लिए बेसिकली नर्सरी और जूनियर केजी का रिलेशन है, जूनियर केजी was 2 more than from nursery of that same time C4। so इससे आपका ये 2 ज़्यादा है, तो आई हैव यूज दिस वेरिएबल ए, लेट्स से अगर यहाँ पे b है, so this has got to be b plus 2, right? now let's move on। this says C5 in senior kg। so C5 in senior kg this value 11 more than the number of C1 in senior kg। so C1 in senior kg, that is this value। so this value has to be 11 more than this value। again same काम करते हैं, let's say this is C, this has to be C plus 11। now fifth statement, the number of C5 type chocolate distributed in junior kg। C5 junior kg, so C5 junior kg this value was 4 more than the number of C4 in junior kg। तो C4 in junior kg, so b plus 2 अगर ये है, so this has to be 4 more, that means this has to be b plus 6। इससे 2 b plus 2 से 4 extra, that is b plus 6। next, the total number of chocolate distributed in senior kg was 139। so senior kg this rows addition is actually 139, right? now this is fine, 39। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 584। तो एक्चुअली में टोटल आपको एडिशन पता है, दिस हैज़ टू बी 584। तो बेसिकली आप हर रो को ऐड कर लो या हर कॉलम को ऐड कर लो, दिस टोटल हैज़ टू बी 584। एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50 चॉकलेट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ चॉकलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन ऑफ द क्लासेस। तो इसी ना इसी एग्जैक्टली एक जगह पे, बिकॉज इन वन ऑफ द क्लासेस गिवन है एग्जैक्टली एक टाइप का 50 नंबर कहीं ना कहीं आएगा इस टेबल में, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली एक जगह 50 आपको फिल करना है, राइट? दिस इज ऑल द डेटा दैट इज गिवन। नाउ सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ यहाँ से हम मे बी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है उन वेरिएबल्स के बीच में क्या हम कुछ इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, लेट्स ट्राई दैट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखो, इस रो पे आओ सीनियर केजी में, तो सीनियर केजी में इन सबका एडिशन शुड बी इक्वल टू 139। सो वी कैन राइट अ सिंपल इक्वेशन फॉर दिस, राइट? सो वेरिएबल क्या आएगा, 6c प्लस a प्लस सी, सो 2c प्लस a या a प्लस 2c लिख लो। सो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a प्लस 2c एंड नंबर्स ऐड करके कितना आएगा, 40 प्लस 41 प्लस 11। सो दिस इज 41 प्लस 11 52, 52 प्लस 40 दैट इज 92। सो 92, सो दिस इज 92 एंड दिस इज 139। इसका मतलब एक इक्वेशन मिल गई आपको, a प्लस 2c, दिस हैज गॉट टू बी 139 माइनस 92, सो दिस इज 47। एक इक्वेशन ये बनी आपकी। नेक्स्ट इस लाइन से आपने यूज़ कर लिया, मे बी एक इक्वेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन जो है 101, क्योंकि सम पता है आपको। अब इन सब का एडिशन देखोगे तो वेरिएबल कितना आएगा आपका, b प्लस सी। सो b प्लस सी प्लस 20, 24, 6 एंड 11, सो 24 एंड 6 इज 30, 30 एंड 20 इज 50, 50 प्लस 11 इज 61। दिस इज ऑल इक्वल टू 101। सो यहाँ से एक इक्वेशन और मिल गई, दैट इज b प्लस सी is 101 minus 61, that has to be 40। अब देखो यार, किसी तरीके से ना, जैसे यहाँ से नोटिस करो आप, a और c का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से b और c का कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ से किसी तरीके से a और b का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो बात खत्म, बिकॉज 3 वेरिएबल आपके पास हैं तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए टू यूनिकली सॉल्व देम। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ से a और b आपको वैल्यू ऐड करते हुए मिल जाए? यस। कहाँ से मिल जाएगा आपको? इन 2 कॉलम से। अब कैसे मिलेगा, देखो यार, अगर मैं C2 और C4 ये दोनों कॉलम्स का एडिशन पूछूं तो वो मैं बता सकता हूँ, इंडिविजुअली नहीं बता सकता, बट मैं इन दोनों को कंबाइन में निकाल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज 5 कॉलम में से 3 कॉलम का आपको एक्चुअली में सम पता है, तो टोटल भी आपको पता है, 5 कॉलम का 584 आना चाहिए था। तो 584 में से बस क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, इन तीनों कॉलम के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है।
So 95, 146 and 101. So 146 and 101, this would be what? 247, or 247 plus 95. So this is 75, that is 2, and 1, that is 4, 1, 342. So 342 basically आपको इसमें से subtract करना है. So we'll end up with what? 2, and this is 4 and 240. So 242 किसका एडिशन होगा? दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम. अब इसमें भी वेरिएबल्स एक साथ पहले एक्यूमुलेट कर लो. सो यहाँ पे आ जाएगा 2a, यहाँ पे आ जाएगा 2b. सो 2a प्लस 2b प्लस सारे नंबर्स को ऐड कर लो. तो 32 प्लस 36 प्लस 17. अब ये कितना बन जाएगा? दिस वुड बी 32 प्लस 36, दैट इज 68. 68 प्लस 17. सो 68 प्लस 7, that is 75. 75 plus 10 is 85. 85 plus let's say 32. So 85, 32 and finally 41. अभी ये कितना आ जाएगा? 5, 6, 7, 8 समथिंग इंडियन है 8, और 3 plus 4 is 7. 7 plus 8 is 15. 158. So 139, सॉरी 2a प्लस 2b ये बना हुआ था, एंड 2a प्लस 2b के बाद हमारा टोटल एडिशन कितना आ गया? 158. सो दिस हैज़ गॉट टू बी 158. सो दैट मीन्स 2a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2a प्लस 2b टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 242 माइनस 158. सो 42 प्लस 42 दैट इज 84. नाउ दिस सिंपली मीन्स कि a प्लस b कितना होगा आपका 2 से डिवाइड करने के बाद? 40. सो ये आपके पास आ गई हमारी 3 इक्वेशंस, एंड यूजिंग द 3 इक्वेशंस वी कैन फिगर आउट व्हाट आर द वैल्यूज फॉर a, b एंड c. नाउ इसको कैसे सॉल्व करें? लेट्स डू दिस समवेयर एल्स. आप बहुत सारे तरीके हैं इसमें. जैसे मैं सिंपल क्या बोलता हूँ, बेसिक से जाओ. आप 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में सब कुछ कन्वर्ट करना चाहोगे. तो जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो a और c का आपका इक्वेशन है, राइट? तो आप यहाँ पे भी a और c की इक्वेशन बना सकते हो. कैसे बना सकते हो? बिकॉज ये a प्लस b जो दिया हुआ है, इसमें b को आप c के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो जैसे यहाँ से b है क्या आपका? दिस इज 40 माइनस c, राइट? तो b इज 40 माइनस c. तो इसी चीज़ को अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी? a प्लस b की वैल्यू इज 40 माइनस c, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 42. तो इससे एक इक्वेशन आ गई आपकी. a माइनस c इज एक्चुअली गोइंग टू बी 42 माइनस 40, दैट इज टू बी 2. एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास थी ही, दैट इज दिस a प्लस 2c हैज़ गॉट टू बी 47. बस अब ये 2 इक्वेशन को आपको बहुत सिंपली सॉल्व करना है. सो सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन, तो a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? 2c माइनस ऑफ माइनस c, सो दिस इज 3c, राइट? प्लीज कैलकुलेट दिस वेरी केयरफुली. तो 2c माइनस ऑफ माइनस c सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड में से फर्स्ट. 3c 47 माइनस 2, दिस इज 45. सो दैट मीन्स पहला आपका वेरिएबल का वैल्यू आ गया, दैट इज c इक्वल्स 45/3, दैट इज 15. नाउ यूजिंग दिस वी कैन डायरेक्टली फिगर आउट दिस b ऑल्सो एंड दिस a ऑल्सो. तो क्या मिल जाएगा यार? a माइनस सी आपका 2 था, इसी इक्वेशन को देख लो. तो a माइनस सी अगर 2 है तो समथिंग माइनस 15 इज 2, तो दैट समथिंग दैट इज दिस a's वैल्यू हैज गॉट टू बी 17. अब b कैसे आएगा? b प्लस c का एडिशन 40 आना चाहिए. c उसमें से 15 है, c अगर 15 है तो b को कितना होना पड़ेगा? 25. सो b's वैल्यू हैज़ गॉट टू बी 25. सो वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द वेरिएबल वैल्यूज. हम बाकी वैल्यूज भी इसी के थ्रू फिगर आउट कर लेंगे. लेट्स जस्ट क्विकली प्लग इन ऑल द डेटा. सो c, यहाँ पे c कितना हो जाएगा आपका? दिस इज 15. नेक्स्ट 32, a प्लस 17, सो a was 17. 17 प्लस 17 हैज़ टू बी 34. देन ये a था, दिस इज ऑल्सो 17. इसमें 30 प्लस ये आपका b था, b दिस इज 25. यहाँ पे दिस प्लस 2, सो 25 प्लस 2 27. इसमें फिर आपका b प्लस 6 है, b इज 25, सो 25 प्लस 6 हैज़ टू बी 31. एंड फाइनली c प्लस 11, तो c आपका कितना था? 15 था, तो 15 प्लस 11 हैज़ गॉट टू बी 26. अभी क्या है, वहाँ पे रिमेनिंग वैल्यूज भी फिगर आउट कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले ये निकाल सकते हो आप, बिकॉज 3 नंबर आपको पता है इस कॉलम में, 95 टोटल भी पता है, तो वी कैन फिगर आउट दिस वैल्यू. सो ये कितना आ जाएगा? 29, 28, दिस इज 57. 57 प्लस 15, सो 57 प्लस 15 is 72.
2. So 72 ये हो गया. So 95 minus 72, this would give me this value. So this has to be 23. So ये आपका वैल्यू 23 आ गया. Now can I figure out these values? अभी इस रो का एडिशन पता नहीं है तो we cannot figure out this uniquely. इसमें भी इस रो का एडिशन नहीं पता है, so we cannot figure out this uniquely. बस आपको इस कॉलम का पता है तो वो हम इन दोनों का सम बता सकते हैं. दैट इज द मैक्स वी कैन डू. बट यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो कंडीशन दिया हुआ था कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास में किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चॉकलेट्स का 50 नंबर आना है, दैट इज टू बी देयर एग्जैक्टली वन टाइम, राइट, इन वन ऑफ द क्लासेस एक टाइप का 50 आना है. अभी करेंटली अगर आप वैल्यूज को नोटिस करो, वी डोंट हैव एनी 50 राइट नाउ. So out of these two values, one has to be 50. So we can break this number. So 146 में we already have 75, right? That means we need an additional 71. तो इन दोनों numbers का addition 71 होना है. इसमें से कोई एक value it has to be 50. तो अगर एक value 50 होगी to make this 71, so the other value has to be 21. तो we can simply say कि दे हैव टू बी 50 21 या फिर 21 50 इन सम ऑर्डर, बिकॉज एक जगह 50 एग्जैक्टली फिट होना, राइट. सो वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द वैल्यूज और द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द क्लासेस एंड ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द चॉकलेट टाइप्स. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द प्रॉब्लम्स. So first says the total number of C2 type chocolates distributed were, C2 का total addition पूछ रहा है. So 32, 34, 36 and 17. So 30, 60, 60, 30 is 90, 90 and 10 is 100. 100 plus unit digits क्या है 4 to 6. 6 plus 6 is 12. 12 and 7 is 19. So this has to be 119. So the answer to the first problem becomes 119. Next, let's move on to the next one. In how many classes was the number of C4 type chocolate distributed more than that of C5? तो कितनी classes में C4 का number is greater than C5? बहुत simple है. C4 का number greater than C5. So for this is true, for this is true, this is not true. 41 greater than 26, so this is also true. So for 3 classes, the number of C4 type chocolates is greater than the C5 type chocolates. Next, what is the difference between the number of C3 type chocolate distributed in playgroup and nursery? So playgroup and nursery में C3 type का difference चाहिए. Now we don't know what the values are in what order, but difference तो unique है ना, because the values have to be 50 and 21 in some order. So either way 50 and 21 का difference, it has to be 29. So the answer to the third problem is also unique, that has to be 29. Now let's move on to the final statement. The final question, the number of C1 type chocolates distributed in nursery. So C1 in nursery, this has to be 23. Done. Right, so I hope you have understood all the concepts behind this particular set. Again, if you have any doubts in the set, you can just put that in the comments. Thank you.